Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus आप Christ. सबका स्वागत हम यीशु मसीह के नाम में करना चाहते And हैं. a very warm welcome from the Heart of Christ Church. और आप सबका स्वागत हम हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया से करना चाहते हैं. We thank you for joining us live right now. आज भी आप जैसे हमारे साथ लाइव में जुड़े इसके लिए धन्यवाद. And I'm sure that you're going to share this link to your family and friends so that they would also be blessed. और हम विश्वास करते हैं कि आप ये लाइव को अपने परिवार के साथ भी शेयर करेंगे. So how many of us are blessed today? और कितने लोग हम आशीषित हैं आज? Can we raise our hands? क्या हम अपने हाथ उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम आशीषित हैं? Those who are joining us live, can you put in your hands and say that yes, we are blessed? और जो हमारे साथ जुड़े हैं आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कि हाँ मैं आशीषित हूँ. We are blessed indeed. हम आशीषित लोग हैं. Because we are alive and we are witnessing this wonderful day. और हम आज जीवित हैं और आज के दिन हम आज देख रहे हैं. As we begin this worship and word, और जैसे हम आराधना और वचन शुरुआत करते हैं, can you please turn to your Bibles from the book of Hebrews, हम इब्रानियों की किताब में खोलेंगे. 11 chapter 6. चैप्टर 11 में 6. Yeah, verse 6. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. How many of us are having that faith which God is expecting? और कितने लोगों के पास ये विश्वास है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है? And who is earnestly seeking him? और कौन-कौन सच्चाई से परमेश्वर का खोजी है? Because that is what God looks for us. क्योंकि प्रभु वही खोज रहा है हमारे बीच में. Come on church, let us rise up and look up to the Lord in prayer. आइए हम सब उठकर तैयार होकर हम परमेश्वर को खोजेंगे. As we begin this service, let us look up in faith and seek him earnestly. और जैसे हम ये आराधना में शुरुआत करते हैं, हम अपने विश्वास को उठाकर परमेश्वर की ओर देखकर हम सच्चाई से उनको खोजेंगे. Hallelujah. We thank you Jesus for this time you have given us. प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया. We thank you for this day which you have helped us to witness this wonderful moment. धन्यवाद कि आपने ये दिन हमें दिखाया कि हम ये दिन को देख रहे And we हैं. thank you for helping us to witness this wonderful service which you have given us. और धन्यवाद इस सभा के लिए जो आप हमने हमारे लिए आयोजित करके रखे हैं. Lord, let us not be men pleasers, but let us be pleasers of God. प्रभु हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहते, पर आपको प्रसन्न करना चाहते हैं. Let this worship and word will give you all the glory and honor. प्रभु ये जो वचन यहाँ बांटा जाता है, जो आराधना होती है, सब कुछ आपकी महिमा लाए. And we keep each and every one into your precious hands. और हर एक को आपके हाथों में हम समर्पित करते We हैं. keep all those who are watching us live right now in the name of Jesus. जो लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में उनको हम आशीष करते We हैं. keep our families, our friends, our relatives into your precious hands. हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सबको आपके हाथों में रखते हैं. We thank you for this time you have given us, Lord. धन्यवाद ये अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया. And we thank you for the things which are going to bless us. और धन्यवाद जो चीजों से आप हमें आशीष करने वाले We हैं. pray for the pastor who is going to share the word. पासवान के लिए हम धन्यवाद कहते हैं. हमें आशीष कीजिए जो वचन बांटते हैं. And we thank you for the worship team who is going to lead us in worship. जो आराधना मंडली हमें चलाती है उनको भी आशीष कीजिए. We thank you for all those who are watching us live right now. जो हमारे लिए हमारे साथ जुड़े हैं लाइव पे, हर एक के लिए धन्यवाद कहते And we हैं. pray for all those who are yet to watch us, Lord Almighty God, that they will assemble together and watch us live और right जैसे now. लोग जुड़ रहे हैं वो भी उत्साह के साथ आकर जुड़कर आपकी महिमा करने के लिए मौका Lord, we दीजिए. give you all the glory and honor, Lord, प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, because there is none like you, क्योंकि आपके समान कोई नहीं and है there is none besides you, Lord. और आपके बिना अलावा कोई नहीं है. And we give you all the glory and honor. We submit this worship, we submit this word into your precious hands. प्रभु पूरा आदर महिमा आपको देते हैं. ये आराधना, ये वचन, ये समय आपके हाथ में समर्पित You करते हैं. speak to us through your word. आपके वचन द्वारा हमसे बात कीजिए Let your name be glorified in and through our lives. और हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा होने दे. We submit our lives, we submit our friends, our families into your precious hands. हमारे जीवन को, हमारे परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. Thank you, Jesus. We humbly ask in the name of Jesus we pray. धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. How many of you all are excited to worship the Lord in truth and in और spirit? कितने लोग उत्साहित हैं आज भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने के लिए? Come on, are you all having that zealous to worship the Lord? क्या आप सब उत्साह में हैं? आपके अंदर वो चाहत है कि परमेश्वर की आराधना करना है? And if you have that zealous right now, start it off. कम और आपके अंदर वो है तो उसको हम चालू करेंगे, आरंभ करेंगे, परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया। उत्साह के साथ हम विश्वास करते हैं आज भी ये दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, वो आज भी एक महान कार्य करने के लिए हमारे बीच में योग्य है। Amen. There's nothing impossible for our God. Even this day He is worthy of doing something marvelous in your life. तो उत्साह के साथ जैसे हम आराधना में जुड़ते हैं, अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे, आत्मा और सच्चाई से हम उनको खोजेंगे ताकि प्रभु हमारे बीच में आज भी एक महान कार्य करे। हालेलुया। हम ताली बजा के हम यीशु का नाम ऊंचा उठाएंगे। वचन कहता है, ये जो अगला स्टैंजा कहता है, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। हालेलुया। जो कोई भी सिचुएशंस में आप हैं, स्तुति आराधना नहीं कर सकते होंगे, पर फिर भी जब आप रियलाइज करते हैं, आप महसूस करते हैं और जानते हैं कि हमारे सिचुएशंस हमसे भी और हमारे सिचुएशन से भी बड़े हमारे प्रभु हैं, तो उनकी जब हम स्तुति प्रशंसा करें, जरूर कुछ होगा हमारी जिंदगी में। हालेलुया। जैसे आप विश्वास करते हैं, साथ मिलकर हम विश्वास के साथ गाएंगे कि स्तुति प्रशंसा करें,
हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। आज का दिन हमारे यहोवा ने बनाया है। आमेन। This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. बाइबल में लिखा है कि दुख रात तक है तो भी सुबह परमेश्वर आनंद लेकर आता है। आमेन। लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि लोग रात को सोकर रो कर सोते हैं, पर सुबह का जो होप है, आशा है, खुशी है, केवल यीशु मसीह हमें दे सकता है। आमेन। ये सुबह के समय में आज का दिन जो यहोवा का दिन है, परमेश्वर का दिन है, दिस इज द डे ऑफ द लॉर्ड। हम ये दिन परमेश्वर के उपस्थिति में चले बिताते हैं, उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी आपके जीवन में महान कार्य करेगा। हालेलुया। आइए साथ मिलकर ताली बजाते हुए हम उनका नाम ऊंचा उठाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी,
विश्वास के साथ ताली बजाते हुए उत्साह के साथ खुशी के साथ कहेंगे, झुक जाएगा आसमान एक दिन। परमेश्वर हमारा भला है और उनकी करुणा हमारे लिए सदा सदा के लिए है। हालेलुया। ये महीने जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु का जन्म को मनाते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि यीशु इस दुनिया में हमारे लिए आए थे। हालेलुया। और अभी वापस यीशु आने वाले हैं। As we celebrate Christmas this month, we remember the Lord Jesus was born for us 2000 years ago. 2000 साल पहले हमारे लिए वो जन्मे थे। पर अभी जब यीशु वापस आने वाले हैं, as Jesus is going to come back again, वो वापस एक बालक बनकर नहीं आने वाले हैं, वो राजाओं का राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान वो राजा हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, झुक जाएगा पूरा आसमान, एक दिन यीशु बादलों पर आएंगे और उस दिन सारा घुटना टिकेगा, सारा मुंह कबूल करेगी कि यीशु मसीह खुदा है, कि जीसस इज द लिविंग गॉड। आमीन। उस दिन के लिए रुकते ही नहीं, पर आज भी हम परमेश्वर के लोग जो उनकी लहू से बच गए हैं, हम आज भी कबूल करते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जिंदा है। That Jesus is alive. Hallelujah. He is alive forevermore. आज भी जैसे परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि शैतान के काम को खुल्लम खुल्ला बाहर निकालने के लिए, फेंकने के लिए। Hallelujah. God has given us the authority to cast out the works of the enemy. बाइबल में लिखा है, जब पतरस यीशु के पास वो बात कर रहा था, यीशु जब बोल रहे थे कि मैं अभी यरूशलेम जाऊंगा और क्रूस को उठाऊंगा, तभी पतरस यीशु को साइड में लेकर जाता है। Peter takes Jesus aside and Bible says he was rebuking Jesus. वो यीशु को कहता है कि यीशु आप ऐसे नहीं जा सकते, आप ऐसे वहां नहीं जा सकते, नहीं मर सकते, ऐसे यीशु के विरुद्ध में वो बात कर रहा था। हम सोच सकते हैं कि वो प्रेम में बोल रहा होगा, maybe with love, he does not want Jesus to go and die for him. So इसलिए वो प्रेम में भी कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा था, पर यीशु को अपना मकसद पता था। Jesus knew his plan and his purpose, and he had to fulfill the plan and the purpose, the will of God for his life. Hallelujah. जो मकसद परमेश्वर पिता ने यीशु के लिए रखा था, उसको पूरा करने के लिए ही यीशु इस दुनिया में आए थे। यीशु जानते थे कि पुराने नियम में जो भी उनके बारे में, उनके प्रति लिखा गया है, हर एक चीज को यीशु को पूरा करना था। और तुरंत बाइबल में लिखा है कि पतरस को देखकर यीशु कहते हैं, शैतान तू मेरे पीछे हट। Jesus looks at Peter and says that get behind me Satan, you do not have any concern concerning the things of God. परमेश्वर की जो चीजें हैं उसके प्रति तुम्हारा कुछ सोच नहीं है। ऐसे करके यीशु पतरस को नहीं, पर पतरस के द्वारा जो शैतान बात कर रहा था उसको वो डांटते हैं। हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है कि शैतान हमारे विरुद्ध में कुछ ना कुछ परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है उसके प्रति, उसके विरुद्ध में काम करने की कोशिश करता है, पर अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। परमेश्वर के लोग होने के नाते वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारी जुबान पे दिया है कि हम कहें, हे शैतान तुम्हारे कार्य से तुम बाहर निकल, हे शैतान मेरे विरुद्ध में जो भी तुम लेकर आता है वो तुम बाहर निकल। आज भी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम सिर्फ यीशु यीशु करके पुकारने नहीं, पर उनके
बच्चे संतान होने के नाते जो अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस अधिकार में चलना हमारा फर्ज बनता है. The authority that the Lord Jesus has given us, God expects us to even walk in that same authority. Amen. Being the children of the Most High God, we got to understand our calling. We got to understand our purpose. हमारा बुलावट क्या है? हमारा मकसद इस दुनिया में क्या है? परमेश्वर ने क्यों हमें पुकारा? क्यों इस दुनिया से अलग किया? मसीह नाम क्यों हमें दिया है? हम विश्वासी क्यों हैं? ये सब जानकर अगर हम परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, तभी हमारा जीवन फलवंत होगा. हालेलुया. यीशु मसीह जानते थे कि इस दुनिया में वो क्यों आए थे. इसलिए वो जानते थे कि पतरस उनका प्यारा चेला है, तो भी वो शैतान जो उसके द्वारा बात कर रहा था, उसको डांटने के अधिकार परमेश्वर यीशु के पास था. आज भी हम जैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार में जैसे हम चलते हैं, ये पूरा दुनिया हम यीशु के लिए हम हिलाएंगे. Amen. When we walk in the authority that Jesus has granted to us, we will be able to shake the world. कलीसिया होने के नाते हम सब अपने आप को हम तैयार करेंगे. परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया को इस चट्टान में बांधा है. The Lord has built the church on the rock and the gates of hell shall not prevail against it. बाइबल में लिखा है कि जो नरक का फाटक भी इसके विरुद्ध में कभी सफल प्रबल नहीं होगा. आमेन. तो सफलता और प्रबलता प्रभु ने हमें ऑलरेडी दिया है. He has already given us the victory over the gates of hell. इसके लिए कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के चट्टान पर खड़े होने के नाते हम अपने आप को दृढ़ बांधेंगे, हम स्थिर करेंगे, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. और यीशु वापस जल्दी आने वाले हैं, उसके लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे. आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, जिसका स्तुति प्रशंसा हम कर रहे हैं, जिसका नारे लगाते हैं, हम जय गीत गाते हैं, वो यीशु मसीह जिंदा है, वो सच्चा परमेश्वर है. आमेन. आइए हम सब आंखें बंद करते हुए अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के सामने हम उनको खोजेंगे, जानते हुए कि हम कुछ नहीं है, पर वो सब कुछ है. आज भी वो जीवित है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का भी प्रभु है. आज वो उस मेजर पे नहीं है, वो बालक नहीं है, वो राजाओं का राजा है. यीशु कहते हैं सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे दिया गया है. All authority in heaven and on earth has been given to me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु. आज भी आपकी उपस्थिति में आपने हमें खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु. जो अधिकार आपने हमें दिया आपके बच्चे बनने के लिए, जो ये ग्रेस आपने हमें दिया कि हम आपको अब्बा पिता बुला सकते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु. हम कहाँ थे, पर आपकी कृपा और दया ने आज भी हमें आपके साथ जुड़ा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु. It's your grace and mercy that has joined us along with you, Father, that we might abide in you and you in us. कि हम आप में बने रहे और आप हम में बने रहे. Come, Father, do something new in our lives. Change and transform our lives, Father. We submit ourselves to you, your will and your plan and your purpose. आपके कार्यों के लिए अपने आप को हम समर्पित करते हैं प्रभु. जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, हर एक को आप, उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. हम विश्वास करते हैं कि आप आज भी उनके पूरे जीवन को आप चलाएंगे. आप चलाइए यीशु. Take control, Father. Lead, guide, protect. Let your name be glorified through us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अब जैसे हमारे साथ जुड़े हैं, I want everyone to be joined with this worship in truth and spirit. जैसे हम आराधना करते हैं, आज भी प्रभु की उपस्थिति आपके घर में प्रवेश कर रहा है. The Lord desires to dwell among you. Hallelujah. He wants to abide with you. सृष्टि
तुझको सादर प्रणाम, हम गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। हम करते हैं तुझको सादर प्रणाम, हम गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Yine de lo more kosha o da harapa. Yene wo da na ko sandu de mission de kidalo. Yene wo da na masana de la ni de wo da na ma. Lere o shaye de lo re kama de ro alfa. Yine maso an da ne de ro shia lo na. Yine ma ka de lere o sandu ro shama. Yene ba ka ba ya आवाज उठाकर परमेश्वर का नाम की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus। मेरे हाथों की रचना हम पर रही तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, अपने राहों पर हमको चलाना। मैं तेरे हाथों की रचना, सफर हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, ये शैतान को छूने न देना। सभी आवाज उठाकर हालेलुया, नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को वो सागर में खोने न देना। जो विश्वास करते हैं सभी अपने हाथों को उठाकर प्रभु ने हमें जो इस सौभाग्य दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करें और कहें कि प्रभु हमें आपकी महिमा करने के लिए, आपकी नाम की महिमा करने के लिए हमें उपयोग करें। नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को बस सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. सभी अपनी आवाज उठाकर, Lord, we thank you, Jesus, for giving us this grace, this privilege that you have given us to worship you and adore you. हम इसके लिए लायक नहीं, पर फिर भी आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपकी आराधना करें, अपने जुबान से आपकी महिमा करें। इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। पूरे हफ्ता आपने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। आने वाले दिनों को भी आप संभालने वाले, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। इस आराधना के समय में जैसे हमने गाया,
इस वक्त आपके बच्चों के जीवन में कुछ नया कार्य आपने किया है, शुरू किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारा सारा तन मन धन आपका है प्रभु। आपसे बढ़कर हमारे जीवन में और कुछ नहीं प्रभु। अगर हम अपने जीवन में ऐसे रास्ते, ऐसे मार्गों पर चलते हैं जहां आपकी महिमा नहीं होता है प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, हर एक को क्षमा कीजिए प्रभु। जैसे हमने यहाँ गाया है कि अपने राहों पर हमें चलाना प्रभु, आपके राहों पर, आपके राहों के आज्ञाओं के अनुसार हमें चलने के लिए हमें कृपा कीजिए, हमें मदद कीजिए। हमारे बातों में, हमारे जुबान से, हमारे चाल चलन में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हमारे पुराने जीवन की जैसे नहीं, लेकिन प्रभु जो नया जीवन आपने दिया वैसे हमें जीने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं। आपके सामने कोई पाप ऐसा खड़ा नहीं रह सकता जो आप क्षमा नहीं कर सकते। हर एक के पापों को क्षमा कीजिए। आपके वचन के अनुसार हमें जीने के लिए हमें मदद कीजिए, हमें सिखाइए, हमें और आगे बढ़ाइए। आप ऐसे करने वाले इसलिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। Lord, we pray the days to come, help us to do mighty things for your name's glory, Lord Jesus. Lord, not our will, but your will be done. Not our ways, but your ways reign in our lives, Master. We thank you for listening to our prayer. Speak to us through your word and help us to grow more and more in love with you and closer to you, Lord Jesus. We thank you for listening to our prayer. In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। आमेन। प्रभु भला है, हम इसके लिए सौभाग्य नहीं, हम इसके लिए बुलाए हुए हैं, लेकिन प्रभु के सामने आज हम यहाँ खड़े हैं, वो उनकी कृपा है। आमेन। As you join along, हम धन्यवाद कहते हैं कि आप जुड़ रहे हैं और आपके परिवारों के साथ ये वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। आमेन। क्या आप सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आइए आप सब अपने बाइबल्स को तैयार करें और वचन सुनने के लिए तैयार रहे, ताकि प्रभु आज आपके लिए जो बातें तैयार करके रखा है वो आपसे बात करें। हालेलुया। Whatever the Lord is ready to speak to you, let the Lord speak to you today. आमेन। और जैसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को। अगर आप स्पेशल प्रेयर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इट, बी इट योर बर्थडेज, योर एनिवर्सरीज, कुछ भी। You can write it there and Pastor will be praying for you. We are there in YouTube and Facebook in The Heart of Christ Church. This is the name, and The Heart of Christ Ministries. You can log in and you can subscribe to the channel so that you are continually connected with us, ताकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, and so that you will be ready. Amen. तो कृपया तैयार रहिए और प्रभु आपसे बात करें। God bless you. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। मेरे प्रियो, ये साल के दिसंबर महीना है, पहला हफ्ता, जो प्रभु हम सबको मौका दिया उनको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको दया किया, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। ये संसार में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन प्रभु का आशीष मिलता नहीं है। बहुत जन उसका आशीष के लिए ढूंढ रहा है, परमेश्वर का उद्धार के लिए ढूंढ रहा है, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, कौन सी रास्ता से परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। And many people are seeking that in what way and how can we get into the kingdom of God. और यीशु मसीह पृथ्वी में जो आया है, सब हमें बचाने के लिए, जो परमेश्वर जो आया है। And Jesus came into this world to save us all. हालेलुया, हालेलुया। अब ये देखना है, परमेश्वर शुरुआत में पृथ्वी में
हर चीज बनाने के समय में कैसा बना दिया सबको पता है। And when God created the heavens and the earth, in the beginning, we are aware of how He did it. परमेश्वर पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठा था और वो उतर के ऐसा मतलब नहीं जमीन को ऐसा बनवा के और आसमान को ऐसा बनाया नहीं है। And we see that the Father, the Lord, when He created the earth, the heavens, it did not mean that He was on the throne. He did not just come down, do something like this with His hands. दुनिया में जो ट्रीज है मतलब हर चीजों को जो बनाने के लिए परमेश्वर वो जगह से उतर के कुछ भी नहीं बनाया। And in order to create the things of this world, the trees, the plants, everything, He did not get down, come down and do it with His hands. आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को, हर चीजों को, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ अपने आवाज से बना दिया है। And we see that, but everything that He created, be it the heavens, the earth, and the things in the earth, He created it with His word. आप ये समझते हैं कि नहीं कितने अभी जो साउथ में बहुत जगह बारिश आ रहा है, सब जगह पानी पानी ये सब भर गया है। And we see that in the south also of India, there's a lot of heavy rains and everything is flooding everywhere. अब ये देखो कितनी आकाश में क्या-क्या परमेश्वर बनवा के रखा है। And just imagine and see that what great things He's created in the heavenlies. लेकिन परमेश्वर ऐसा हाथों से बनाया नहीं है। But all these things were not created with His hands. सिर्फ हाथों से जो बनाया आदम को बना दिया But और we एव को see बना दिया। that the one He created with His own hands was Adam and Eve. हालेलुया। Hallelujah. जो स्वर्ग राज्य में पृथ्वी में सिंहासन में जो आसमान जो करने वाला परमेश्वर उतर के सब चीज को नहीं बनाया, सिर्फ आदम को एवा को बना दिया अपने हाथों से। Everything He created by His word, but when He created mankind, God made him with His hands. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए वो बना दिया है। Because He created them for और Himself. आपको और हमको जो परमेश्वर ने जो बनाया उनके लिए बनाया है। And God has created you and me for Himself. और अभी हम जो गीत गाया था, स्तुति करता था, क्योंकि जो ये संसार में हमें होना नहीं चाहिए, परमेश्वर को छोड़ के हम अलग नहीं जाना चाहिए। अगर हम अलग जाएंगे तो शैतान हमें खा जाएंगे। And we see that we are never supposed to be separated from God, go away from Him, because once we stray away from Him, Satan is ready to swallow you up. अगर आपको स्वर्ग राज्य में जाना है, अनंत जीवन पाना है, तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर और विश्वास से और बढ़ना है। And if you want to enter the kingdom of God, you have to increase in faith, grow in faith, and draw closer to God. क्योंकि परमेश्वर ये पृथ्वी में जो आया है हमें बचाने के लिए। And Jesus came into this world to save us all. हम वचन में पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। ये जो वचन, ये जो फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट डे प्रभु ने जो मुझे जो दिया है, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, सबको आशीष देने के लिए जो वचन जो दिया है, वो वचन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। As this is the first Sunday of the month, the word that the Lord has given to us, we will read and meditate on it. Luke chapter 19 verse 12. 10. Sorry, chapter 10. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। Hallelujah. किसको ढूंढ के आया है? Who has the Son of Man come seeking? खोए हुए। वही मतलब जो मिसिंग हो जाता जो है, Those who कोई are हम lost, उसको ढूंढ के आया परमेश्वर। God Jesus has come searching and seeking them. समझ लीजिए एक परिवार में 5 जन हैं। Imagine that a family is a family of 5. अगर वो जो 4 जन घर पे है, एक जन काफी दिन से आया नहीं है, Suppose that 4 of them are at home and one is missing. तो उसके पीछे ढूंढेंगे, माता पिता सब जन ढूंढेंगे, मेरे एक बच्चा कहाँ गया है, किधर गया, करके ढूंढते रहेंगे। And we see that the family, the 4 of them, will be in search of that one person who is missing. तो इस तरफ से अगर वो उनको नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, मेरे बेटा मेरे बेटी गुम हो गए, काफी दिन से नहीं मिल रहा करके। And then if they are not able to find the person, they will immediately go to the police station and say that, oh, my child is missing, please search. इस तरफ से बहुत जन अपने अपने कार्य से बहुत जन अपने चीजों को खोया है। Many times we see that like this. Similarly, many people have lost a lot of things. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो बता रहा है, वो पृथ्वी में जो आया, सिर्फ जो खोया हुआ है, जो मिसिंग जो है, उनको वापस ढूंढ के लाने के लिए परमेश्वर आया। And the word says that the Son of Man has come to seek and save that which was lost. ये खोया हुआ मतलब क्या है? What is this lost that we're speaking आप about? समझ लीजिए, खोया हुआ मतलब कभी-कभी जो अपने हाथों से कोई गिर जाता है, कोई भूल जाता है,
ये इसकी खोया हुआ होता है। Many times when we say I lost something, it means maybe we dropped it somewhere, we forgot where we kept it, and we lose something. अभी समझो आपका कोई कुछ चीज है, आपका कुछ कीमती चीज है, उसको कोई आदमी ने आपका बिना आपको मतलब उसको उठा के लेके गया, चोरी करके लेके गया, तो आप ढूंढते रहेंगे। Suppose that there's something expensive that you have and somebody picked it up and went, then you will be continually in search of it. तो इस तरफ से आपका जीवन को नाश करने के लिए शैतान ने आपको अच्छे चीज को उठा के लेके जाता है। And we see that in order to destroy us, Satan comes and steals a lot of good things out of your life. क्योंकि परमेश्वर जो कहता है तुम शैतान को मौका मत दो। And the word of God says, do not give Satan a foothold. अगर आप मौका देंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। And when you give him a foothold, immediately he comes and gets involved in your life. अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो शैतान एकदम आसान आपके जीवन में आ जाएगा। And if you do not have the Lord Jesus in your life abiding in you, then easily the works of Satan starts working जो in you. इधर जो लिखा है यीशु मसीह जो पृथ्वी में जो आया खोया हुआ को ढूंढ के आया है। And the word says that he came to seek that which was lost. और जो दूसरे वचन में जो लिखा है पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन में पढ़ेंगे। 1 John chapter 3 verse 8। He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। ये पाप करते हैं शैतान को ओर से, क्योंकि शैतान ने उनको मन में उनको इस तरफ जो करो इस तरफ करो करके उनको बताता है। It clearly says that he who sins is of the devil. क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अब ये समझ लीजिए शुरुआत से शैतान पाप कर रहा है, लेकिन कैसा करता है? हम अभी वचन में जो पढ़ा है, जो पाप करने वाला शैतान का द्वारा करता है। We read that the one who sins is of the devil, and Satan has been sinning from the beginning. उसका मतलब यही है जो शैतान उनका मन का अंदर है, इसलिए वो पाप करने के लिए मौका And देता है। because the devil is working in their life, he's in their life, they are immediately falling into अगर sin. आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा अगर यीशु मसीह है तो आपको पाप करने के लिए आपको बताएगा नहीं। And we see that if you have the Holy Spirit inside of you, surely he will not allow you to fall into any kind of वापस sin. पढ़ेंगे 8वां वचन से शुरुआत करेंगे। He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो इसका मतलब यही है जो शैतान किसका अंदर है वो इंसान पाप करता है। And understand that whoever has the devil living or residing or abiding in him, that person sins. तो इसके कारण जो इसलिए बता रहा है वचन में जो लिखा है शैतान को मौका मत दो। That's why the word of God says, do not give the devil a foothold. अगर शैतान को मौका दे तो शैतान आपके द्वारा काम करेंगे। Understand that if you give him a chance to work in your life, surely he'll work and do something through you. और ये शुरुआत से लेके वो शैतान अपने पुराना अपना सबको उन्होंने खराब कर दिया, नाश And we कर see दिया that है। from the beginning he has been destroying people's lives. और इस तरह से आज भी मसीहियों को भी शैतान नाश करता है। And even today, the ones who believe in the Lord, he's behind them to destroy their life. आप ये समझते हैं शैतान को आप देखा नहीं होंगे, लेकिन शैतान का चाल आपका अंदर होता है। Many times you have not seen Satan, of course, but you will see his works playing through you. हम किताब में दिखाएंगे, फोटो में दिखाएंगे, मतलब मूवी में दिखाएंगे शैतान काला जैसे होता है, लंबा लंबा दांत, लंबा लंबा तीर और हाथ बड़ा और सब ऐसा ऐसा मतलब कहानी बताता है। Many times we see that be it in the movies, the books, we see in the screens, they show him very terrifying, like he's dressed in black, he's having horns, long teeth, and very big eyes and something like that. वो है सही है, लेकिन वो
इस तरफ जो रहता है सबको नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनके नजदीक में कोई नहीं जा सकता है। And there is pictures portrayed in such a way because he is really coming in to destroy people and no one wants to get closer to him. अगर आपको बगल में एक जगह शैतान आके खड़ा है तो इस तरफ से सहेल में खड़े है तो आप उनके पास जाएगा? If Satan is dressed up like this and he's standing in front of you, will you go to him? तब आप इमेजिन करके देखो, सर सब आपके सामने आके खड़ा है, इतनी ऊंचा काला लंबा लंबा दांत और इतनी बड़ी बड़ी आंख देखे आपके सामने खड़े से आप उनके पास जाएगा? And suppose he's dressed like that in black with long horns and long teeth, terrifyingly standing, will you go to him? डर जाएगा, Surely you will be scared. क्योंकि उनको इतना मतलब देख के डर जाएगा। Looking at him itself, you will be terrified. लेकिन इस तरह जो शैतान आपका अंदर घुस जाता है, Just understand that such a wicked one comes and tries to dwell inside of you. और शैतान किस तरफ अंदर घुस जाता है तो आप ये समझ लो किस तरफ उनका चेहरे जो दिखा रहा है उस तरफ जो क्रिया है आपका अंदर हो जाता है। Understand that the wickedness that he's portraying, that wickedness starts working in your life. इधर वचन में जो लिखा है उनका चाल चलन को निकालने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी में आ गया। And the word says that for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. हम ये वचन पढ़ेंगे एफिसियन चैप्टर 4 वर्स 26 and 27। We read the book of Ephesians 4:26 and 27. ये वचन में जो लिखा है, जो तुम गुस्सा करो, तुम एंगर करे तो भी, लेकिन पाप ना करना। Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। जो क्रोध करो मतलब जो गुस्सा सबको आता है। We see that everyone gets angry at some point or the other. आप भी देखो, आप गुस्सा नहीं करते हैं? Just look at yourself. Don't you get angry? छोटे छोटे चीज को कोई अपने खिलाफ कोई बात किया तो भी हमें गुस्सा आता है। When somebody speaks something against you, you get angry. अगर कोई अपने खिलाफ कुछ कार्य किया तो भी हमें गुस्सा आता If है। someone does something against you, you get angry. लेकिन वचन में जो लिखा है सूर्य अस्तमी का मतलब जो खत्म अंत होने से पहले तुम्हारे गुस्सा नॉर्मल होने दो करके। It says, do not let the sun go down on your wrath, meaning that you must cool down before the sun sets. अब ये समझना है शैतान ये तो इसीलिए अंदर आने के लिए क्या कारण होता है। And how Satan works in your life, easily he enters. ये जो एंगर को उसके बारे में जो बता रहा है, अगर आप एंगर मतलब गुस्सा करेंगे तो वो तुम्हारे अंदर शैतान रहता है। And one of the ways in which he enters into your life is when you get angry. इसके लिए 27 में जो लिखा है, Verse 27, nor give place to the devil. और न शैतान को अवसर दो। अब कैसा भी किसी तरफ से भी कोई रीजन से भी शैतान का मौका मत It दीजिए। says that do not give him an opportunity or a place in your life. मेरे प्रिय, शैतान आके आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे। Remember, my beloved, he's not coming to steal your money. सबसे पहले शैतान आके आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता भी तोड़ देंगे। First, he tries to break the relationship that you have with the Lord. उसके लिए क्या क्या परमेश्वर को जो ना पसंद है वो काम आपसे करवाएगा। And he'll make you do things which are displeasing to the Lord. परमेश्वर जो बता रहे मेरे बेटे मेरे बेटी तुम इस तरफ काम मत करो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पीछे पड़ो करके परमेश्वर जो बता रहा है, लेकिन उनका पीछे जाने के लिए मन नहीं देंगे, उनका खिलाफ काम करने के लिए शैतान मौका देंगे। God will tell you, my son, my daughter, do this, do that, don't do this. But here Satan, what he will do is he will entice you into doing things that displeases the अगर Lord. आप परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, If you are the son and daughter of God, अगर आप बिलीवर है बहुत अच्छी बात है। if you are a believer, it's a very good thing. अगर आप बिलीवर नहीं है तो भी अच्छी बात है। And if you're an unbeliever, लेकिन ये एक बात याद रखना है, परमेश्वर यीशु मसीह का हर बातों को हमें स्वीकार करना है। but remember these things, accept every word that proceeds from God. और ये वचन आप पढ़ने समय में आप देख लो एक वचन भी आपको बुराई के लिए नहीं लिखा है। And none of the word that God has spoken is ever for your evil. हर चीजों हर सब
आपका आशीष के लिए, आपका भलाई के लिए परमेश्वर ने लिख कर And रखा है। every word that God has given us is for your good and a blessing. वो कभी आपके सामने अभी समझ में नहीं आएगा। Maybe now you do not understand it. एक छोटी बच्चा अभी स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, A child is studying in school or college, और उनको अपना माता पिता जो बता रहा है, मेरा बेटे अच्छी तरह पढ़ो पढ़ो करके, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो करके उनको कहता है। and the parents start advising the children that do not waste time, start studying. और बहुत जन जो करता है आज, अब जो अभी लॉकडाउन के समय में काफी दिनों से कॉलेज स्कूल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत जन जो पढ़ रहा है। And now because of the lockdown, of course, everyone is studying online. अब ये बताइए कि बहुत जन ऑनलाइन में पढ़ रहे करके गलत गलत चीजों को देखते रहता है। And a lot of children, what are they doing? They are seated to study online, but they're doing a lot of other wrong अपने things. मम्मी डैडी के सामने हम पढ़ रहे करके दिखा रहा है, और मम्मी डैडी आगे जाने के बाद और कुछ देख रहा है। And while their parents are around, they act, they pretend they're studying, but when they're not around, they're doing something क्योंकि else. जो झूठ बोलने के वजह से वो शैतान उधर आ जाता है। Because of the lies, Satan is working in their life. आज बहुत जन गवाह, आज बहुत गवाह ऐसा है, मेरा बेटा इस तरफ जो हो गया, मतलब जो गलत गलत चीजों को देख रहा है, कर रहा है करके, लेकिन वो क्या देखे देखे आगे आगे शैतान को जगा देंगे और शैतान उनके अंदर आ जाता And है। for the little things that these children fall into, they give Satan a foothold, and then he starts continually अपने working माता in their पिता life. कुछ भी पारो में चिल्लाए तो भी वो बच्चा गुस्सा हो जाता है। And when the parents try to correct the children, they get angry. बेटा ये बेटी ये मत करो बोले तो उसको गुस्सा हो जाता है। And if the children, the parents advise the children, do not do this, my son, my daughter, they get angry. और अपनी माता पिता को ऊपर नफरत करके और किसी के साथ चला जाता है। And they start hating their parents, and then after that, they are led astray. अब माता पिता किसके लिए बता रहा है? And why are the parents correcting, उनका सही disciplining बता रहा them? है। They do it for their own good. लेकिन वो बच्चा क्या समझता है? हमारा पूरा के लिए माता पिता करना करके। But the child, without understanding things that the parents are doing evil towards them. हमें ये समझना है, माता पिता किस तरफ से अच्छे के लिए जो करता है, इस तरफ से परमेश्वर अपने जीवन में अच्छे अच्छे चीज के लिए बताता है। Understand that as just as parents discipline and correct their children, similarly God also does everything for the good of His children. इसके लिए परमेश्वर जो कहता है, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करो। And the Word of God says, obey your parents. वो कारण इसके लिए है, पिता परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए एक शिक्षण है। This is like a teaching that as you obey the parents, you will learn also to obey God. ये एक शिक्षण जो अपने माता पिता को आज्ञा पालन करने से वो बच्चा अपने पिता परमेश्वर का भी आज्ञा पालन And on करेंगे। obeying the parents, the child will know how to obey God Himself. अगर कोई भी इंसान वो अगर शैतान को उसको मौका देंगे, तब वो अपने माता पिता के खिलाफ काम करेगा। When the youth gives a foothold to Satan, immediately the child starts working against the अब ये principles समझ लो, of the इस parents. तरह से मौका देने से परमेश्वर उनको ढूंढ के आ रहा है, वापस मौका दे रहा है, ये मेरा बेटा मेरा बेटी करके परमेश्वर खुद आ रहा है उनको बचाने के लिए। And God Himself, out of grace, comes again to restore the children back. Comes and says, "My son, my daughter, come back, come out of this." इसके लिए जो वचन में हम पढ़ा था, लूका में जो पढ़ा था, जो खोया हुआ है उनको ढूंढ के परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी And में that's why we आया read है। in the book of Luke, it says, "The Son of Man came to seek that which was lost." और इसके कारण मेरे प्रियो हमें संभालना है, हमें वचन सुनना है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना My है। beloved, you must hear the word of God and obey the word of God. हम वापस एक बार ये पढ़ेंगे किस तरफ जो है परमेश्वर यीशु मसीह, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन में हम जो पढ़ा था, जो शैतान का हर चाल चलन को निकाल के हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी में आया करके जो लिखा है। And we read in the book of 1 John chapter 3 verse 8 that for this purpose the Son of God came that He might destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आपका जीवन में शैतान का कामों को नाश करके पवित्र जीवन बिता के अपने मोक्ष को अपने हमें आनंद का जीवन देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी में आया। Understand that the Lord came to destroy the works of Satan. He came to save you and grant you eternal life.
आपको बुला रहा है, He's calling out to you. आपको बुला रहा है। He's calling out to मेरा you. प्रिय, उनकी जगह दे, My beloved, give him space. उनके खिलाफ तुम बातें मत कर, Don't speak against God. उनके खिलाफ कुछ काम मत Do कर। not do things that are against God. अगर तुम उनके खिलाफ काम करने से तुम्हारा नाश होने वाला Remember, है। if you work things against the principles of God, you're destroying yourself. अगर तुम पापी है तो पाप से छोड़ के पवित्र बनने के लिए तुम कोशिश कर। If you're living in sin, repent, turn away from it, and come out and live a holy हम life. वचन में देख लेंगे जो यीशु मसीह पृथ्वी में रहने थे क्या हो गया। लूक चैप्टर 19 वर्स 3 अध्याय में पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 3। इसी में सकेल के बारे में जो प्रभु जो बता रहा है, We read in the book of Luke chapter 19 ये verse 3 about बहुत Zacchaeus. के बारे में हम पढ़ा है। We have read about this many a times. And he sought to see Jesus, who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. वह यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। आप पहले सबसे पहले ये समझ लो, पहले यीशु को देखना चाहता था। उनके मन में यीशु के ऊपर प्रेम आ गया, यीशु के बारे में जानना चाहिए था, यीशु को देखना चाहिए था। उनके मन के अंदर पुकार। We see the first thing was he sought to see Jesus. He had the desire that he wanted to see Jesus. वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। वो छोटा आदमी था, मतलब वो दिखता नहीं था। And he was short in stature, and because of the crowd he could not see और उन्होंने him. क्या किया आगे? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। एक अंडरस्टैंड समझ लो, वो क्या समझ के बैठ गया, यीशु यही मार्ग में आने वाले करके जल्दी जल्दी दौड़ के वो जो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया था। And we see that he came to know the route in which Jesus was coming, so he ran ahead of the crowd, ran ahead of Jesus, and he sat on the sycamore मतलब tree. अब समझ लो, प्रिपेयर किया, मतलब वो रेडी होके, मतलब आगे जल्दी जाके बैठ के इस तरफ जो प्रभु आने वाला है उनको हम देखेंगे करके वो पहला उन्होंने डिसीजन ले लिया। And here we see that he took the effort, the step of preparing himself to run ahead of Jesus, and he sat on the tree so that he could see him. अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आना चाहिए तो तुमको पहले तुम्हारे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। In order to meet with Jesus, see Jesus, and if you want him to be in your life, you have to prepare yourself. तो यीशु ने बताया नहीं सकते तुम जल्दी जाके उधर जाके बैठो, पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, मैं इस तरफ आने वाला है, आज तुम्हारे घर पे आने वाला है, करके कुछ भी बात नहीं किया। And Jesus did not tell Zacchaeus, Zacchaeus, please run ahead, go sit on the tree, I will come at this time here and you can meet me. No. मेरे प्रिय, वो खुद स्वयं भाग के जाके बैठ गया। We ऊपर see, जाके। my beloved, he ran and took the decision by अब himself. देख लो, अगर इस तरफ से होने के समय में क्या चंगाई हो गया उनके And जीवन look में। here, because of the effort that he put in, the preparation that he did, what happened in his life. तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। Hallelujah. अब ये समझ लो, ये जक्केयू किसके लिए झाड़ में गया? Understand for what purpose did he climb the sycamore समझ tree? बोलो, सबसे बोलो क्या Come बोला? on, what is the purpose? देखने Why? के वो लिए। देखने के लिए। He climbed the tree just to see सबसे Jesus. बोलो देखने के लिए। देखने के लिए. लेकिन यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है? And what is this Jesus is telling तुम्हारे him? घर पे मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। Come down quickly because I must stay at your house. हालेलुया। Hallelujah. कितनी सौभाग्य है। Such a grace, such big grace. अब ये समझ लो, अगर यीशु मसीह को तुम देखने जाते हैं, यीशु मसीह को तुम पाने जाते हैं, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आएगा, तुम्हारे घर पे परमेश्वर आएगा। And when you seek the Lord, when you take the effort of seeking God, God will dwell and come into your house. और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। Amen. इसमें लिखा है आनंद से, खुशी से। It says joyfully he came down, he took Jesus to his मेरे house. प्रियो, यीशु मसीह, आप जो सोच रहे हैं, जो एक सादा प्रभु नहीं है, Don't imagine Jesus to be very ordinary God. इतनी बड़ी परमेश्वर है He's a वो। big God. आपका घर पे आते बोले तो ये इतनी आसान नहीं है। For him to come to your house, it's not a small or light आप ये thing. समझ ले, आपके घर पे कोई ऑफिसर आ रहा है, नहीं तो कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? When there is an officer, someone in great stature, they come to your house, how do you behave? अब
दुनिया के बनाने वाला राजा बादशाह जो संसार को, पृथ्वी को, आकाश को बनाने वाला इतनी बड़ी परमेश्वर आपके घर पे आने जाता है। And the Lord who created the heavens and the earth, the big God wants to come into your house. अब वो कौन होता है? ज़क्कैयु कौन है? And who was Zacchaeus? वो पापी करके सब जन दुनिया बता रहे हैं, वो And the आगे whole चलने world के लिए knew that he was a sinner at that time. आगे बढ़ेंगे। But when they saw it, they all complained, saying, "He has gone to be a guest with a man who is a sinner." वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो पापी मनुष्य का घर पे जो प्रभु गया करके सब जन मुस्कुराता We see है। that everybody was complaining, "Oh, see, Jesus has gone to be a guest in the house of a sinner." यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है, सिर्फ पाप को नफरत करता है। Understand that Jesus loves the sinner, but hates the sin that they are involved in. अगर तुम पाप को छोड़ के तुम अगर परमेश्वर पास आए तो परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं। And when you let go of your sin and you come to the Lord Jesus, He will love you. आप देख रहे हो यीशु मसीह वो घर का अंदर आने समय क्या हो गया, उसका अंदर का अंदर परिवर्तन हो गया है। We see that when Jesus entered His house, there was a transformation in Zacchaeus' life. उन्होंने अपने आप को कबूल किया, मैं बहुत जन को पैसा लूट लिया, मैं बहुत जन को मैं सब कुछ किया, लेकिन मैं सब वापस देता हूं करके उन्होंने कबूल किया है। He himself confessed, saying that I have cheated many people, I have taken money falsely, I'm अगर going to यीशु give मसीह back. आपके जीवन में अगर आ गया तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करके दिखाना पड़ेगा। When Jesus comes into your house, immediately there will be a transformation in your नॉट life. हाउस, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आए तो When Jesus comes into your life, there will be a transformation in your life. अगर आप मसीह हो के मैं मसीह में जाता हूँ, ये कलीसिया में जाता हूँ करके उससे कुछ मतलब नहीं है। It doesn't matter you're a Christian believer, you say I go to this church or that church. अगर आप मसीह में है, अगर बिलीवर है तो प्रभु का चाल चलन को आपके जीवन में भी आना पड़ेगा। And if you are a believer, you must have the works of God working in your life. जो आप प्रभु को जो नापसंद काम को छोड़ना पड़ेगा। You must let go of the things that displeases the Lord. तब क्या हो गया? And after that? परमेश्वर जो कहते हैं, आज तुम्हारे घर को तुम्हें आज इस घर में उद्धार आया है, हालेलुया। इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। And it says, today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham. आज परमेश्वर यीशु मसीह वो ज़क्कैयु के घर पे आया है, उनको ढूंढ के आया है, उनको परिवार को बचाने के लिए जो आया है, वही परमेश्वर यीशु मसीह आज तुम्हें बुला रहा है। And the same Jesus who entered this house to save Zacchaeus and his family, he is calling out to you today. परमेश्वर से दूर तुम चला गए होंगे। You may have gone far away from him. मेरे प्रियो, तुम दूर मत जाओ, परमेश्वर तुमको पुकार रहा है। My beloved, do not run far away from him. Jesus is calling out to यीशु you मसीह ने today. जो वचन में दिखा रहा है, ये भी अब्राहम का पुत्र करके बता रहा है। Jesus is saying that he also is the son of Abraham. अगर अब्राहम का पुत्र करके किस तरह एक पापी को परमेश्वर ने जो बदलता है, इस तरह से तुम्हें भी परमेश्वर बदल कर And सकता है। just like how God can transform a sinner, God can transform your life. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से जो कहा था, तुम्हारा संतान को मैं आशीष करेंगे, तुम्हारे संतान के ऊपर मैं हमेशा कायल रखेंगे करके यीशु ने वादा किया था। And we see that God had promised Abraham that I will bless you and your descendants after you, and that promise God is fulfilling. ये किस तरह से ये अब्राहम को पुत्र बनाए, इस तरह से और एक जन के पास यीशु मसीह ने बताया, तुम भी अब्राहम का पुत्री करके बताया था। And here how he mentioned about Zacchaeus being the son of Abraham. In another place, Jesus mentions that you are a daughter of Abraham. हम वचन में पढ़ेंगे लूक का चैप्टर 13 वर्स 10 से 11 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 10 से लेके। Now he was teaching in one of the synagogues of the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over, and could in no way raise herself up. सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। एक दुष्ट आत्मा वो जो स्त्री को पकड़ कर कहा है 18 वर्ष से। We see that this woman, she had an infirmity, a spirit of infirmity, and the spirit had bound her for 18 years. वो मूड़ी हुई थी।
She was totally bent down. बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता था। She could not stand upright. अब ये समझ लो 18 साल। 18 years. अब ये समझते 18 साल बोलो तो कितने हैं? आप समझते आपका जीवन में मारता जीवन निकल जाता है। 18 years is so much that so much of your life has gone by. अब ये इस बात याद रखना है, जो स्त्री कहाँ गई थी? प्रार्थना में गई थी। Pratna, she went to the synagogue on the Sabbath. आपको ये बताया क्या उसी दिन यीशु मसीह वो प्रार्थना भवन में आने वाला करके वो स्त्री की खबर है? Did she get information that Jesus is coming on this date here in the synagogue? अगर इतनी साल से बीमारी जो 18 साल से जो स्त्री अगर वो मुड़ी हुई थी, वो घर छोड़ के घर कलीसिया में नहीं जाती थी। If there was another woman in her place, if she was bed for 18 years, she would never go out anywhere in public. She would be at home. हो सकता है थोड़े दिन, 1 साल 2 साल कलीसिया में जाएंगे, बाद में अभी क्या करना है मेरे जीवन में, ऐसे करके घर पे बैठ सकता था। You know, maybe the first year or the second year she may have gone, and then after that she said, what is the use of going? And she may have stayed back at home. वो जो स्त्री का अंदर जो शैतान जो पकड़ा हुआ है, तकलीफ दे रहा है। We see that she had the spirit of infirmity, and there was harassment because this pain because of it. अब वचन वापस पढ़ेंगे verse 11। And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अब एक चीज इसमें बहुत बार हम पढ़ा है, हम सीखा है, लेकिन इसमें आज परमेश्वर जो बताता है। And many a times you have read this, meditated here, but there's some things God is revealing to us. ये जो स्त्री को संगाई देने के लिए परमेश्वर वो इस दिन गया है। We see that Jesus walked into the synagogue that day to heal her. अब ये समझना है, जो दुष्ट आत्मा वो स्त्री को पकड़ के तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ के साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वो गई। We see that in spite of having the spirit of infirmity inside of her, in spite of the pain and the suffering, she got up and she went to hear God's word. मतलब आपका जीवन में समझते छोटी सी पुकार आए तो आप परमेश्वर पर नहीं जाएंगे। Many times when we have little fever also we avoid going to church. कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे। We will give some excuses. आपको दूसरा कुछ काम करने की समय है। We have time always to do many other things. परमेश्वर का भवन में जाने के लिए कभी-कभी मन नहीं लग रहा है। But to go to the house of God, to things concerning God, we do not have the heart. अभी आप कितने जन ये लाइव में देख रहा है? And how many of you are watching live this day? कितने जन मन लगा के देख रहा है? How many of you are watching with all of your heart? कोई ये भी हो सकता है, मतलब टाइम बच चलो ठीक है, थोड़ा इधर-उधर काम भी करके खाली कलीसिया भी अटेंड करेंगे करके। Many others also might think that okay, we'll just do some work here and there and we'll attend church also. मेरा प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जो कहता है, वो देखो उसी दिन 18 साल से जो स्त्री को जो तकलीफ हुई, लेकिन परमेश्वर ने उनको जीवन में चंगाई की है। And we see that this woman was suffering for 18 years. Jesus healed her. वो गई थी कलीसिया में। She went to the house of God. विश्वास के साथ गई। She went with faith. एक न एक दिन मुझे छुटकारा मिलेंगे करके। Someday or the other, I will have a आप deliverance. देख लो, अगर आप इस तरफ से विश्वास के साथ जाने के समय में उधर क्या हो गया देख लो। And when you walk in faith, what happens? We'll read. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आशीष देने वाला परमेश्वर है। My beloved, Jesus is a God who blesses. वो जो ये इसमें वचन में जो देख रहा है, वो स्त्री को देख के, वो स्त्री का दुख देख के यीशु मसीह ने उनको बुला के अपने हाथों से उनको छू के उनकी चंगाई कर दिया। We see that Jesus saw her, saw the pain in her. He called out to her and he said, "Woman, you are loosed from your infirmity." इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा है, जो खोया हुआ को ढूंढ के आया है। That's why the word of God says he has come to save and seek that which is lost.
चोरी कौन कर रहा है? आपको बसाने वाले कौन है? शैतान है। Remember, the one who's stealing, killing, destroying is Satan. आपके जीवन में, आपके घर पे समझ लीजिए कितना जन कितना मेंबर है? Just imagine how many people are in your house. 3, family. 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever may be. Maybe any number of people living together. अभी आपके खिलाफ शैतान आ रहा है, वो जो आपको नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, आपके ऊपर अटैक करने के लिए। Imagine that Satan is coming against you to attack you, to make you maybe destroy you, suffer, make you suffer. वो सबसे पहले वो क्या करने वाला है? What is the first thing step he'll वो take? आपका घर का अंदर आप आपस में लड़ाई करने के लिए वो कुछ कार्य करेगा। And the first thing step he takes is he'll try to create a confusion and a fight between you among yourselves. तब वो एंट्री करेगा। And then he will enter in. क्योंकि अगर आप सब साथ में एक मन होके हमेशा स्तुति आराधना करके प्रार्थना करने के समय में आपका घर का अंदर शैतान नहीं आएगा। When you are together in one heart, one accord, when you worship together at home, he cannot come and destroy you. परमेश्वर का आज्ञा अगर पालन करेगा तब परमेश्वर का प्रशंसा उधर रहेंगे, शैतान अंदर नहीं आएगा। And when you are obeying and living a life of obedience to the Lord, God's presence remains with you and he cannot enter. आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जॉब में, आपका सब जगह में नाश करने के लिए शैतान आता है, लेकिन अगर मौका नहीं दिए तो परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। Remember, he comes to steal, kill and destroy, to bring destruction. But when Jesus is with you, when you are in the Lord, he cannot do anything against you. क्या होता है? घर के अंदर से एक दूसरे से गुस्सा करके, एक दूसरे से नफरत करके, एक दूसरे से क्षमा नहीं करके आपस में लड़ाई करते रहेंगे, सब शैतान इजीली अंदर एंटर हो जाता When there है is misunderstandings, fights, arguments inside the house, easily Satan enters in. और इजीली आपका जीवन नष्ट हो जाता है। And then he destroys. आपका परिवार नष्ट होता He है, destroys your आपका family. जीवन नष्ट होता He है। destroys your life. लेकिन आपका जीवन से बचना है, आप परिवार से, श्रापों से बचना है तो यीशु मसीह को आपके जीवन में लेना है। And if you have to be saved, you need the Lord Jesus Christ. इसलिए जो परमेश्वर जो बता रहा है, तुम गुस्सा के तो शैतान को मौका मत दो। He says that be angry, do not sin, and do not give Satan a place. वो आया है मृत्यु में हमें बचाने के लिए आया है। Jesus came to save us. हम उत्पत्ति में जो पढ़ा है, जो यीशु परमेश्वर ने सबको दुनिया में सबको अपने सबसे बनाया है और सिर्फ आदम की एवा को अपने हाथों से बना करके हमने पढ़ा है पहला। We have read in Genesis that God created everything with His word, but when He created mankind, He used His own hands. अभी परमेश्वर स्वर्ग राज्य में बैठकर परमेश्वर उधर ही बैठ के तुमको उधार दे सकता है। Jesus, God, can be seated in the heavens and He can save you. He can grant you salvation. तो आपका पापों को, आपका अधर्मों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ऊपर बैठ के वो तुम्हें उधार नहीं दे सकता है। And here we see that He can do it, but God did not sit up there, just sitting there to save you or grant you salvation. तुम तो दूर जा रहे हो, परमेश्वर छोड़ के दूर जाने के समय में परमेश्वर तुमको नहीं दे सकता है। And you are running far away from Him, how can He save you? इस तरफ से जो परमेश्वर मृत्यु में पाप से जो मर गया, सब इंसान को बचाने के लिए, शैतान के चाल चलन से बचाने के लिए, अपने अनंतकाल जीवन देने के लिए स्वयं यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी में जो आया है। And we see that in order to save mankind from sin, in order to draw man closer to Him, God Himself came down into this world. Jesus came down into this world. आज परमेश्वर तुम्हारे से जो कहते हैं, तुम्हारे जो खोया हुआ है हर चीजों को ढूंढ के देने वाला परमेश्वर अभी भी जिंदा है। And all that you have lost, the Lord Jesus is alive today to give it and grant it back to you. तुम्हारा ब्लेसिंग को, तुम्हारा आशीष को कुछ ना कुछ कारण से तुम अगर खोया होंगे तो आज परमेश्वर जो वापस तुमको बुला रहा है, वापस तुम्हारे पास आ रहा है। And if you lost some blessing from the Lord, even today the Lord calls out to you and says He can give it back to you. और इसको ये चीज को तुम इसीलिए मत समझ लो। And do not take these words lightly. बार मौका नहीं मिल रहा है। You know, we do not get the opportunity again and again. एक दिन के बाद जो वचन में जो लिखा है, एक दिन के बाद 100 पेड़ है, उसी में से एक पेड़ खोया तो भी वचन में लिखा है वो 99 पेड़ भी छोड़ के वो एक पेड़ को ढूंढने के लिए वो जा रहा है। And we read in the word, the parable where the man had 100 sheep and one was lost. He left the 99 just going seeking that one. हम वचन में पढ़ेंगे लूक का चैप्टर 15
Yeah. Verse 4. Luke chapter 15 verse 4. What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। आगे। And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। अब देख लो, ये खोई हुई भेड़ मिलने के बाद कितने आनंद हो रहा है। उस तरफ से अगर एक पापी मन फिराए तो स्वर्ग राज्य में आनंदी के ऊपर आनंदित होता है। And when one sheep is found back, there's so much joy and rejoicing. Then just imagine, it says that there's so much rejoicing in heaven when one soul is saved. वो हमें ढूंढ के आया परमेश्वर यीशु मसीह ने। God has come seeking for you. अपने पुराने हाल चाल सब कुछ छोड़ दो। Let go of all your old life and your old behaviors. पवित्र जीवन बिता लो। Come to a life of holy वो अपने living. जीवन दिया है। He has given himself for you. अपने पवित्र परमेश्वर हम सबके लिए लहू देके हमें बचाने के लिए बुलाया है। हमें ये संसार के पापों से, ये अधर्मों से छोड़ के पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर तुम्हें बुला रहा And the है। Lord has called out to you to let go of the sinful world, the wickedness of this world, and come to Him. इस तरफ से यीशु मसीह जो पृथ्वी में आया है, उसके कारण हमें उसके खिलाफ हमें भागना नहीं चाहिए, उधर छोड़ के भागना नहीं And चाहिए। God has come into this world, and we are not supposed to run away from Him. परमेश्वर का वचन जो कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, तब तुम्हें सब चीज तुम्हें मिल जाएगी। The word of God says, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. परमेश्वर के वचन सुन लीजिए, Hear the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करो Try your best to live according to the word of और God. परमेश्वर को दिखाओ। तो उसको बताने दो, ये यीशु मसीह का बेटा है, बेटी करके ये पृथ्वी में हमें दिखाना जरूरी You है। must show the others, reveal to others that you are the children of the Most High और God, शैतान को मौका मत दो। and do not give Satan a foothold. प्रभु तुम्हें आशीष दे। May God bless you. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Prabhu, thank you Jesus for this wonderful time you've given us. आपने जो हमें ढूंढ के ये पृथ्वी में आया है हमें बचाने के लिए। Thank you Lord that you came seeking us into this प्रभु world. आप अगर आप नहीं आए तो हम ये पृथ्वी में पापों से, श्रापों से हम फंस के होंगे प्रभु। Lord, if you had not come, we would have been stuck and we would have been lost in the sin of this world. आप हमें ढूंढ के आए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। Thank you that you came seeking us. We want to thank you 1,000 times. हमारे ऊपर इतना आपने जो प्रेम किया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं Thank you प्रभु। that you loved us so much. प्रभु आज जो देखने वाले, सुनने वाले भाई बहन बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We are praying for all those Lord children and brothers and sisters watching us live. इनके जीवन में आपके खिलाफ कोई भी कार्य कर देगा तो प्रभु हर कार्य को निकाल दीजिए प्रभु। Lord, if there's anything working in their lives that's against you or displeasing you, we pray you'll uproot it out in the name of Jesus. प्रभु आपका अभिषेक से ये सबको भर दीजिए प्रभु। We pray you'll fill them with your anointing. आने वाले दिनों में सबके जीवन में कहाई के जीवन बोलने की मदद कर In the coming दीजिए days, we pray there'll be testimonies rising in their lives. प्रभु। ये सबके लिए हम और एक बार प्रार्थना करते हैं, जो जो चीज के लिए ये लोग जो खोया होंगे उनके घर के अंदर से, जो प्रभु खुशियां से, आनंद से, कमी कटी से, हर चीज से जो खोया होंगे, लेकिन प्रभु आज प्रभु आपको जो मांगता हूँ इस सबके जीवन में आशीषों से बदल दीजिए प्रभु। We pray that if they have lost something in their lives, be it anything, be it even their joy, we pray it will be restored back to them in the name of इनके Jesus. जीवन में क्या क्या जरूरत है आप सबको दीजिए प्रभु। Lord, we pray that whatever they have, the necessities and needs, you will grant it to them.
आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। Lord, you have heard our prayer and we want to thank आज you. सबके जीवन में नया आशीष दे दिया, उसलिए धन्यवाद करते प्रभु। We thank you that you have blessed them and granted them a new blessing this यस day. लॉर्ड, क्योंकि आपका जो मकसद हमें ढूंढ के हमें बचाने के लिए जो आया है, आज आपको वचन के द्वारा हम सबको आपने छू लिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। Lord, you came to seek us all and even today you have touched us. We want to thank you. अभी जो आने वाले दिनों में आशीष के ऊपर आशीष आने दो प्रभु। In the coming days, let there be blessings upon blessings. हर परिवार को शांति, समाधान और आपका अभिषेक सबको परिवार में आने दो We प्रभु। pray there be peace and blessings over every family. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, In the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. मेरे पीछे ये प्रार्थना आप दोहराइए जैसे हम ये सभा खत्म करते हैं. Repeat this prayer after me. तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बड़ा था, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता बुराई से ऐसे बचा रखता, कि मैं इससे पीड़ित न रहूं. ऐसे पीड़ित आमेन. आशीष देंगे. गोयाओं को ढूंढ के आया था यीशु मसीह का अनुग्रह, संसार को पर इतना जो प्रेम किया पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे. Amen. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah.